कैंसर एक ऐसा रोग है जिसका नाम सुनते ही रूह कांपने लगती है। कैंसर का खौफ इतना है कि बीमारी का पता लगते ही व्यक्ति सोचने लगता है कि अब तो मौत निश्चित है। जो लोग हिम्मत जुटाकर इस बीमारी का इलाज करवाना चाहते हैं, तो उनके सामने दूसरी बड़ी समस्या पैसे की आती है। पैसा कहां से लाएं? क्योंकि मुफ्त में तो इलाज होता नहीं है और कैंसर के इलाज में पैसा भी काफी लगता है। गरीब व्यक्ति इलाज के लिए पैसा कहां से लाए? पैसे के पीछे भागती हुई दुनिया में गरीबों को तो जैसे बीमार पड़ने का हक ही नहीं है। पर सच्चाई यह है कि गरीब भी बीमार पड़ते हैं, क्योंकि कोई भी बीमारी गरीबी या अमीरी देखकर नहीं आती। ऐसे माहौल में हमें मालूम हो कि एक ऐसा भी हॉस्पिटल है जहां मुफ्त में कैंसर का इलाज होता है। शुरू में तो हमें यकीन ही नहीं होता, पर सच्चाई जब सामने आती है तो ऐसी संस्था के लिए मन से ढेरों दुआएं निकलती हैं। मैंने पेशेंट्स के मन में डॉक्टर्स, नर्सेज, आयाज, वार्ड बॉयज, किचन में काम कर रहे लोग सबके प्रति प्यार और आदर पाया। विश्रांति एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां पेशेंट को गरीब होते हुए भी उसको उसकी गरीबी का एहसास नहीं दिलाया जाता। कर्नल न्यायपति के अथक प्रयासों द्वारा पुणे में विश्रांति हॉस्पिटल की स्थापना हुई, जहां कैंसर के मरीजों का मुफ्त में इलाज किया जाता है, जो गरीब हैं और जिनके पास इलाज के लिए पैसा नहीं है। मैंने एक पूरा दिन हॉस्पिटल में बिताया। वहां काम कर रहे डॉक्टर्स, नर्सेज, अन्य स्टाफ और पेशेंट से भी बातचीत की। इस शॉर्ट फिल्म को अंत तक जरूर देखिए, आपको भी इन लोगों से प्यार हो जाएगा। काश ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल होते जहां गरीबों में जो बीमारियों से जूझ रहे हैं, जीने की आशा जगाई जाती हो। We have been here for last 30 years and my mother died of cancer and something touched a raw nerve where I decided to quit a very safe and secure service in the army. I was a colonel in the army. I left the army service, visited the United States, Europe, many cancer hospitals there, and came up and started this organization. Ever since we have been doing home care of the patients because there was no infrastructure with us. My wife was an anesthesiologist and she used to visit patients at home, and I also used to accompany, and many other staff members and doctors used to accompany her to care and comfort these patients. As the days passed, we found that we require certain traditional hospital environment where we can take care of the patients with difficult symptoms. So we set up the Vishranti Hospital in the year 2007. Here we admit patients totally free of cost. There are no limitations whether they are rich or poor for cancer clinical care. As the years passed, there are many young mothers who started coming and asking us that they wanted cancer treatment. Had we said that we don't give cancer treatment, they would have again landed up in the terminal stages, which is very painful to understand. Therefore, we took a consensus decision to get these poor patients treated at Command Hospital. Command Hospital has been giving free surgeries to all these patients. We were giving chemo drugs to Command Hospital to administer these chemo drugs. At one point of time, we understood that we require an in-house facility to start the chemotherapy. Therefore, we started a chemotherapy center, a daycare center at that time. Now it is no more a daycare center, it is a chemo administration center. We
give chemotherapy to all patients free of cost again, and there are no limitations for us because we do not take any money from the government. We do not take money from any other sources where they put in too many restrictions. Us. We go as per our ethics and our own ethos. And anybody who is a poor patient, we continue to take them, waiving all requirements, but we focus our attention on the disease of the patient and how to save as many lives as possible. Therefore, we have been getting chemo patients from various sources and by word of mouth, and we have been treating these patients free of cost. There are many patients who require radiation therapy. I sign a check and at 50% of the local market cost, and they are treated at other hospitals at 50% cost. So we are giving a complete comprehensive cancer care surgery followed by chemotherapy at this center and radiation in other hospital by outsourcing. Should there be any treatment failures, we have our own palliative care center that is on the first and second floors of this hospital, where we admit them for the terminal care. We take care of them until they live. We provide even funeral expenses. We provide mortuary facilities. We have a refrigerated coffin, and if there is any death that is taking place in this hospital, we keep them because these patients are very poor. They cannot afford to take the dead body elsewhere and place them in any mortuary or pay for it. We provide all kinds of support and help to these patients, and no one is charged, whether it is in chemotherapy, whether it is in the palliative care. We are planning to start a bigger hospital as the time progresses. As the funds get accumulated, we try to start an intensive care unit plus a surgery where we can take up surgeries for head and neck cancers, and we hope that this organization grows from strength to strength and we move on regardless. मेरा नाम तस्नीम शेख है। मैं प्रोफेशन से साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में काम करती थी हॉस्पिटल रिसर्च प्रोजेक्ट्स में। ये दौरान मुझे मेरी एक फ्रेंड ने विश्रांति हॉस्पिटल को इंट्रोड्यूस किया और मैंने यहाँ देखा कितने जेन्युइनली गरीब लोगों की यहाँ पे ट्रीटमेंट की जाती है और सेवा की जाती है। यहाँ के काम के बारे में सबसे अलग ये है कि गरीब लोगों को कभी गरीबों की तरह ट्रीट ही नहीं किया जाता। हॉस्पिटल इतना क्लीन, नीट, उनका खाना वही खाना जो लोगों के लिए बनता है, पेशेंट्स के लिए बनता है, पूरे डॉक्टर्स खाते हैं और यहाँ तक कि हमारे डायरेक्टर सर खाते हैं। यानी यहाँ पे कभी किसी के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है और ये चीज़ मैंने पहली बार किसी एनजीओ रन हॉस्पिटल में देखी। प्लस यहाँ का क्लीनलीनेस, जिस तरह से यहाँ का हाइजीन मेंटेन होता है, यहाँ के नर्सेज, यहाँ के माउशीज जिस तरह से पेशेंट्स की सेवा करते हैं, ये मैंने किसी कॉरपोरेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल कहीं भी नहीं देखा। यहाँ पे सिर्फ पेशेंट के साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं रुकता, उनकी फैमिली के साथ इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। उनके बच्चों के लिए हम अगर कुछ कर सकते हैं तो वो भी हम करते हैं। उनके लिए फ़ीस अरेंज करना, उनके लिए लैपटॉप अरेंज करना, यहाँ तक हम लोग चले जाते हैं। और फिर वो औरतें जो बिल्कुल यंग मदर्स होती हैं या घर पे पीछे पूरी फैमिली छोड़ के आती हैं, उनको इतना काउंसलिंग देना पड़ता है कि यहाँ पे तुम्हारी ट्रीटमेंट भी होगी, तुम्हारी केयर भी ली जाएगी और तुम्हारा जीना क्यों ज़रूरी है, तुम्हारे बगैर तुम्हारी फैमिली किस तरह से रुकने वाली है या कितनी सफ़र होने वाली है, ये हमको बहुत बार उनको समझाना पड़ता है। तब जाके वो कैंसर के शौक से बाहर आती हैं। कैंसर एक ऐसी बीमारी है, जब किसी भी पर्सन को मालूम पड़े कि उसको कैंसर हुआ है तो शायद आधा वो इंसान वहीं पे मर जाता है।
और पूरी उसकी आस टूट जाती है जीने की। तो वो पर्सन के अंदर पहले तो आस जगानी पड़ती है कि उसको जीना है, उसको सबके लिए जीना है, सबसे पहले खुद के लिए जीना है। और जब वो उसके अंदर फीलिंग आ जाती है, उसके बाद वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। कैंसर की ट्रीटमेंट में जो कीमोथेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी है, सर्जरी है, ये सब काफ़ी डिफ़िकल्ट थिंग्स है। लेकिन इसके लिए जब फैमिली, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल सबका सपोर्ट मिलता है और गरीब पेशेंट्स के लिए जब इसके लिए पैसे नहीं भरने पड़ते हैं, तब कहीं जाके वो पेशेंट इसके लिए तैयार हो जाता है। हमारा हॉस्पिटल जो है वो भवानीपेट पुणे में स्थित है और यहाँ पर हमारे पास में जनरली हम लोग पुअर लोगों के लिए कहते हैं, लेकिन मिडिल क्लास पेशेंट्स भी हमारे पास आ सकते हैं। हमारा हॉस्पिटल 4 फ्लोर्स का है, जिसमें 23 बेडेड हॉस्पिटल है ये, और हम कीमोथेरेपी यहीं देते हैं, पैलिएटिव केयर भी यहीं देते हैं, रेडिएशन और सर्जरीज आउटसोर्स करते हैं। और यहाँ पे जब एडमिट किया जाता है पेशेंट, उसका खाना, उसके अटेंडेंट का खाना, ये भी हॉस्पिटल की तरफ से ही प्रोवाइड किया जाता है। तो पेशेंट्स को लिटरली कुछ भी पे नहीं करना पड़ता यहाँ पे। पेशेंट्स डायरेक्टली आके यहाँ पे हमको अप्रोच कर सकते हैं, 11 से 5 के बीच में एनी टाइम वो आ सकते हैं। सिर्फ पुणे से नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं, ऑल ओवर इंडिया। हमने नेपाल के पेशेंट्स को ट्रीट किया है, एक यमन की पेशेंट थी हमारे पास में। हमारे पास किसी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एनी ह्यूमन बीइंग हमारे पास आ सकता है, एनी कैंसर का पेशेंट हमारे पास आ सकता है। हमारे पास और कोई भी लिमिटेशंस कुछ नहीं, एक आधार कार्ड सिर्फ एक आइडेंटिटी के तौर पे हम लेते हैं, दैट्स ऑल। आधार कार्ड नहीं है तो राशन कार्ड, पासपोर्ट कुछ भी दे सकते हैं। कोई भी नया पेशेंट, कैंसर पेशेंट है, वो यहाँ पे आ सकता है, मुझे अप्रोच कर सकता है। मेरा नंबर है 8805323973। अगर मैं नहीं भी मिलती हूँ तो हमारे वॉचमैन से लेके हमारी सब नर्सेस तक आप किसी को भी मिल सकते हैं। आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका नाम यहाँ पे छोड़ सकते हैं। दूसरे दिन आपको यहाँ से कॉल आ जाएगा मिलने के लिए, और आप यहाँ आके मिल के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और उसके बाद हम, जब तक पेशेंट लाइव है तब तक हम लोग उसकी केयर लेते हैं। नमस्ते, मेरा नाम शबाना शेख है और मुझे छाती का कैंसर हुआ है और यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से इलाज होता है और यहाँ सब डॉक्टर और सब हमारा ख्याल रखते हैं। मेरा नाम डॉक्टर आयशा शेख है और अभी जिस पेशेंट के साथ आपने बात की है, शबाना शेख, सीए ब्रेस्ट की पेशेंट है और उनका HER2 पॉजिटिव वाला कैंसर है, जो कि बहुत ज़्यादा वो एग्रेसिव नेचर वाला कैंसर होता है। एंड उनका हम जो कीमोथेरेपी वो कर रहे हैं वो ट्रांसुसुमैब बेस्ड कीमो है चालू। फ़िलहाल तो उनको मेंटेनेंस ट्रांसुसुमैब कीमो है। अगर बाहर आप इसका ये देखो तो ये बहुत कॉस्टली इसका कीमो जाता है। कीमो ड्रग भी बहुत ज़्यादा वो एक्सपेंसिव है, बट हमारे यहाँ पर यंग पेशेंट है, बिलो द एज ऑफ 45 इयर्स है। शबाना सिर्फ 43 इयर्स की है। इनके घर पे छोटे बच्चे होते हैं, इनका अपना भी जो डेली वर्क करके इनको अपना घर भी चलाना वो होता है। तो ये सब कंसिडर करके हम लोग ऐसे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प वो करते हैं। अदरवाइज़ आपको कहीं भी कोई भी NGO ट्रांसुसुमैब जैसे ड्रग के लिए हेल्प करने के लिए कोई भी राज़ी नहीं होगा, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली ड्रग है। सेकंड, जो ये HER2 टाइप के कैंसर्स होते हैं बहुत एग्रेसिवली स्प्रेडिंग होते हैं और ये बहुत जल्दी दूसरे ऑर्गन्स में स्प्रेड होते हैं। तो इसके चलते इनका ट्रीटमेंट भी टाइम से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ ये बहुत प्रेशियस लाइफ है। अगर वो माँ सही रहेगी तो फिर उसकी फैमिली भी अच्छी रहेगी और हम सिर्फ उनकी लाइफ को बेनिफिट नहीं वो करेंगे, उनके पूरे फैमिली के लाइफ को बेनिफिट करेंगे। ये हमारी पेशेंट है मंगल रावड़े, ये भी सीए ब्रेस्ट की पेशेंट है और इनका अभी तक सर्जरी नहीं हुई है। ये 34 इयर्स ओल्ड है और कैंसर का जो ट्यूमर का साइज़ था थोड़ा बड़ा था, तो इसके लिए ऑन्कोफिजिशियंस ने ये डिसीजन लिया कि पहले इन्होंने कीमो स्टार्ट वो करना है। तो अभी इनका लास्ट कीमो का सेटिंग कल ही हुआ है। अभी कुछ कीमो के बाद कुछ दिक्कतें होती
होती है, कुछ इनका पेशी ड्रॉप होता है, तो वो नहीं होने के लिए हम लोग यहाँ पर पेशेंट को 3-4 दिन तक वो रखते हैं। उनको कुछ इंजेक्शन होते हैं। ये लोग जनरली जिस माहौल से आते हैं, थोड़ा हाइजीन का हम लोग यहाँ पर एहतियात वो रखते हैं। साफ़ सुथरा फ्रेश खाना इनको हम देते हैं। तो अगले 3-4 दिन तक पेशेंट और ख़ास करके मंगल यहाँ पर वो रहेगी। उसके बाद हम होप करते हैं कि हम इनको सर्जरी का रेफरेंस वो देंगे। सर्जरी के बाद वापस से अगर कुछ एक आधा दूसरा सेल अगर पीछे छूट गया हो तो उसके लिए भी फर्दर कीमोज़ होते हैं, फर्दर रेडिएशन होता है। तो इस तरह से इनका ट्रीटमेंट जो है अगले 2-3 मंथ्स तक कंटिन्यू रहेगा। आमची इथं खूप सगळेजण काळजी घेतात, डॉक्टर लोक पण, मावश्या, नर्स लोक, सगळे एकदम आमची छान सेवा करतात. माझं नाव सुशीला अडसूळ. इथं माझी ट्रीटमेंट चालू आहे. तर इथं खूप काळजी घेतात. नाश्ता, जेवण, चहा, बिस्किटं वगैरे सगळी काळजी घेते ती सगळी इथं व्यवस्थित. मी श्रद्धा मोहिते. मी इथं स्टाफ नर्स म्हणून काम करते आहे आणि इथं मला काम करताना खूप छान वाटते, कारण इथं आम्ही गोरगरीब लोकांची सेवा करतो आणि तेही या हॉस्पिटलमध्ये मोफत त्यांना ट्रीटमेंट भेटते आहे. जे गरजू लोक आहेत त्यांना ती ट्रीटमेंट भेटते आहे. Good afternoon. I'm Seish Rao Damerla, an educationist by profession and some NGO work, and some of the organizations I'm connected with are Spectrum, Friends of Children, and a few others like Ashray. Coming to Vishranti, I'm talking today on behalf of my family. Because why I say family is my husband, Major D.V.R. Rao, and Colonel Nyayapati have been close friends, but I never knew this friendship would turn into something which would lead to reaching out to society. Amazing work. The two things I can think for Colonel Nyayapati are: one, purity of intent. It may have been in the army, but today it is for every human being who walks into Vishranti. The second thing which I think of is Mother Teresa when I look at Colonel Nyayapati's work. My name is Ramakrishna. I am a retired naval officer, and I am also happen to be very fortunately the son of Colonel Nyayapati, who is the founder trustee of this organization, Care India Medical Society. And I am saying that I am very fortunate because I have seen a number of hospitals, I have seen a number of charitable trusts and organizations, but I have not seen any organization which is quite like this. And what I mean by quite like this is the entire organization is based on a very profound sense of care and affection for the patient, which is very difficult to find in today's day and age. मेरा नाम डॉक्टर पृथ्वी है. मैं विश्रांति हॉस्पिटल में एक मेडिकल ऑफिसर हूँ एंड पैलेटिव डिपार्टमेंट का इंचार्ज. यहाँ पे मेरे पास केवल 5 पेशेंट्स हैं. सारे ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे है कैंसर के. हम यहाँ पे उनकी जितनी हो सके उनका कंफर्ट एंड केयर रखने की कोशिश करते हैं, जितना पेशेंट स्टेबल रहे. इनके आफ्टर द ट्रीटमेंट जो डिफ़िकल्टी होती है उन्हें, या फिर जितना ब्रीदिंग हो सके, या फिर कोई भी पेशेंट केयर में हम कमी नहीं होने देते इनमें. मैं ऑनरी लेफ्टिनेंट वाजिद अली सेना से रिटायरमेंट के बाद पिछले 8 सालों से इस संस्था से जुड़ गया. पहली बार जब मैं आया तो यहाँ की सिचुएशन देखकर दिल अंदर से द्रवित हो गया था, और मैं रिलायंस कम्युनिकेशन के जॉब को, क्योंकि मैं सिग्नल से था तो मैं बहुत अच्छी जॉब मिल रही थी, लेकिन मैं उसको छोड़कर मैं यहाँ पर अपने ट्रस्टी कर्नल न्यायपति के साथ एसोसिएट हुआ और एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हॉस्पिटल का काम करने लगा. पेशेंट को पूरी चीज़ें मेडिकल साइट्स को छोड़कर जितनी चीज़ें हैं उनका सारी चीज़ टेस्ट वगैरह
कमांड हॉस्पिटल के द्वारा एसोसिएशन के साथ उनके साथ लाइजन करके कोशिश यह किया गया कि जहाँ तक हो सके जिसकी जितनी मदद हो सके कर दिया जाए। पेशेंट को ढूंढ के हॉस्पिटल में वहाँ से कमांड हॉस्पिटल के रिसेप्शन में बताकर यहाँ तक पहुँचाना, डॉक्टरों से लाइजन करके उनको देखना, जो पेशेंट्स हैं उनके रिलेटिव्स हैं वहाँ पे अगर बाय द वे आ गए हैं तो उनको यहाँ पर रहने के लिए पूना में जगह नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट किया जाता है। उनके जो डिपेंडेंट्स वगैरह होते हैं उनके खाने पीने का भी ध्यान दिया जाता है। यह सब चीज़ें देखकर, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी अपने दर्द से तो हर मनुष्य को एहसास होता है, लेकिन जो दूसरे के दर्द को फील करता है एक्चुअल में वही मनुष्य है और वही उसका जीवन है। इसलिए मैं ज़्यादा कहकर वक्त नहीं बर्बाद करूँगा। मैं यही कहूँगा, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है।